Hi friends, how are you? Are you fine? I am extremely elated to learn that my previous video was very successful, and this is indeed a rare privilege for me to be associated with you. I am really on the crest of a wave because my previous video has got such an unprecedented success. So this has encouraged me to keep uploading a few videos on the same topic, common errors. So today I have decided to upload a similar kind of video, which is part 2 of common errors, and I am sure you will certainly take interest in this video and thus rectify your mistakes so that your English may become absolutely polished and refined. So आज हम जो है कुछ कॉमन एरर्स के और उदाहरण पेश करेंगे। उन उदाहरणों को आप जो है अच्छी तरह से देखेंगे, और कभी भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उस एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये वीडियो अपलोड मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। तो एज यू नो, it is my habit to write some aphoristic sayings for you so that you may also get acquainted with these aphoristic sayings, and you may also use them in your life so that you may get new energy and new motivation from these aphoristic sayings. So, first of all, let me write some aphoristic sayings, जिनको कहते हैं सूत्रात्मक कथन। So, here I have written two aphoristic sayings for you, which are called Sutratmak Kathan in Hindi. And in English we call them aphoristic sayings. So, here I have written two aphoristic sayings for you, and let me explain to them so that you can understand them properly. A hedge between keeps friendship green. It means if we want to keep in contact a person, so we will have to make sure one thing, that we will have to always maintain a good distance from him. You should also try to make some kind of distance from him. तो उससे जो है थोड़ी दूरी रखना भी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उसको ज्यादा मुंह लगाएंगे तो वो हमारी जो है तिरस्कार करना भी शुरू कर देता है। तो इसके लिए एक और सुविचार है कि टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज्यादा जान पहचान करने पर हमारा जो है अगला व्यक्ति he starts insulting us because he thinks we are nothing before him. So in this way, a hedge between keeps friendship green. A hedge यानी एक दीवार, between बीच में अगर है हमारे, keeps friendship green, कि एक हमारे बीच में अगर कोई एक अदृश्य दीवार है तो वो हमारी मित्रता को जो है लंबी दूरी तक ले जाता है। ये जीवन का मूल मंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको हम ज्यादा मुंह लगा लेते हैं, चाहे वो हमारा पुत्र हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो पुत्र पुत्री कोई भी हो, whether he is our son, daughter or relative, friend, so in that way he starts insulting us,
he start contempting us. So you should always maintain a good distance from your relatives. So next is, people who are averse to hard work generally do not succeed in their life. People who are averse to hard work, कि जो व्यक्ति averse to यानी घृणा, घृणा जो कि घृणा करते हैं किस चीज से, कठिन परिश्रम से, do not succeed in their life, वो अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं. Industry is the key to success. If you want to get immense success in your life, then you will have to become industrious person, laborious person, so that you may start endeavoring in your life and get immense success. So in this way, these two aphoristic sayings have been written. So, dear friends, after writing these two aphoristic sayings, let's come to the point. अब अपन पॉइंट की बात करते हैं, ताकि ये सारे जो भी मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं, the sentences which I have written here, I want to explain them to you so that you can understand them properly, and in this way I am certain that you will not commit these mistakes in your life and your English will become absolutely impeccable. So first is, Macbeth is one of the greatest tragedies that has been written by William Shakespeare. So as you know, William Shakespeare was a sensational writer. He was a magnificent playwright who wrote many plays, dramas and poems, sonnets in his life, and his dramas are still making a splash in the world. His four dramas, Macbeth, his four tragedies, Macbeth, Othello, King Lear and Hamlet, are still making a splash in the world. He was a world-renowned scholar and he is regarded the greatest playwright in the history of English literature. So what happened? He had written four tragedies. So Macbeth is one of them. So here we are talking about his tragedy Macbeth. Macbeth is one of the greatest tragedies that has been written by William Shakespeare. So dear friends, here what happens? I have written has. Now this problem is in this word. The problem अब इस has में है. Has been written by William Shakespeare. कि Macbeth जो है, अब इसको अपन हिंदी में समझेंगे कि Macbeth जो है वन ऑफ दी, एक है किन में से, महानतम दुखांतिकाओं में से, जो कि लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा. मतलब कि सारी दुखांतिकाएं महानतम है उनकी. तो जो महानतम दुखांतिकाएं हैं जो कि लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उनमें से मैकबेथ एक है. तो यहाँ पर मैकबेथ जो है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज दैट हैव बीन, कि वो जो महानतम दुखांतिकाएं जो लिखी गई हैं, यहाँ पर जो है दुखांतिकाओं की बात जो हो रही है जो लिखी गई है, तो यहाँ पर हैज की जगह आ जाएगा हैव, क्योंकि ये दिस सेंटेंस विल बी यूज्ड इन प्लूरल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज दैट हैव बीन. जो महानतम दुखांतिकाएं शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है उनमें से मैकबेथ एक है. तो इस प्रकार यहाँ पर हैव आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ईच ऑफ द बॉयज हैव डन वेल, कि प्रत्येक लड़के ने अच्छा काम किया है. तो यहाँ पर each of the boys have done well. Now distributive pronoun has been used here. Each and every are called distributive pronouns. So each, every, everyone and everybody, these words will certainly be followed by a singular in a singular form. So each of the boys has done well. Have will be replaced by has. कि प्रत्येक लड़के ने अच्छा प्रदर्शन किया है. तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक. तो जब हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट देम सेपरेटली. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम यूनाइटेडली. वी आर टॉकिंग अबाउट देम सेपरेटली एज ए सेपरेट एंटिटी. तो प्रत्येक बच्चे ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है. तो प्रत्येक बच्चे ने, तो यहाँ पर जो है ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से प्रत्येक बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है. तो यहाँ पर ईच के हिसाब से यहाँ पर हैज यहाँ पर
आ जाएगा। नेक्स्ट है वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, कि किसी को, हर एक व्यक्ति को, वन का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट वन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय वन, नो वन, नथिंग एल्स विल बी यूज्ड इन दैट सेंटेंस। सो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, हर एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। वन शुड अबाइड बाई वंस रूल्स, तो इस प्रकार वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। सो हिज विल नॉट बी यूज्ड हियर, वी विल हैव टू यूज वंस, कि हर एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। तो हिज की जगह पर यहाँ पर वंस ही आएगा। वन अगर पहले शुरू में है तो बाद में भी यहाँ पर इसमें वन ही आएगा। हर एक व्यक्ति को अपना, अपना के लिए यहाँ हिज नहीं आएगा, उसी का जो है इसी के हिसाब से वन से वंस हो जाएगा। फिर अगला है ही इज सीनियर देन मी, सो द प्रॉब्लम इज हियर, कि वो मुझसे जो है सीनियर है, वो मुझसे पद में ऊंचा है या मुझसे तो अनुभवी ज्यादा है। ही इज सीनियर देन मी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ शब्द हैं वो हमेशा सीनियर, जूनियर, इंफीरियर और सुपीरियर, these words will always be followed by two. Two will always follow these words. He is senior to me, he is junior to me, he is inferior to me, he is superior to me. इनमें हमेशा टू का ही प्रयोग होगा। तो सीनियर के बाद में देन की जगह प्रयोग आ जाएगा टू का। There is also a saying that in ancient times mother's status was regarded superior to that of fathers, कि प्राचीन काल में महिलाओं का सामाजिक स्तर पुरुषों की तुलना में ज्यादा माना जाता था। सो इन दिस वे नाउ नेक्स्ट इज वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, हमने जो है चर्चा की मुद्दे पर कल। सो यहाँ पर मैंने अबाउट का प्रयोग किया है। सो नाउ लुक एट दिस बोर्ड, व्हेन these some words are used, discuss, describe, order, request, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करने पर हमको जो है ये शब्द जो है कभी भी these words will never be used with the preposition following, no preposition will follow these words, इन शब्दों के साथ में कभी भी कोई preposition का प्रयोग नहीं आएगा। These words will be used independently. So we discussed the matter yesterday. About is a preposition, about एक preposition है, लेकिन preposition का हम प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जैसे अपन कहीं होटल में गए और होटल में जाकर हम यूं नहीं कहेंगे कि I ordered for 2 cup of tea. I ordered for नहीं होगा, I ordered 2 cup tea. In that way, I ordered 2 cup tea. I requested for his auspicious arrival. So it will not be used in that way. I requested his auspicious arrival. मैंने उनके शुभ आगमन की कामना की। और इसके बाद में so discuss, describe, order and request will never be used with the preposition following. Now pass me water. Now dear friends, here you will find that what kind of problem in this sentence. आपको अब लगेगा कि इस वाक्य में जो है किस प्रकार की कमी है। तो इसमें ये एक कमी है कि यहाँ पर जो वाटर शब्द है उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया है, तो इसके साथ में द का प्रयोग यहाँ पर आएगा। But you will say that in some sentences you find that no article has been used with abstract or material noun. So in some sentences of material noun we will not use any article, and in some sentences of material noun or abstract noun we will use some articles. Now look, blood is thicker than water. Now look,
ब्लड इज थिकर देन वाटर, के खून जो है गाढ़ा होता है पानी की तुलना में। तो यहाँ पर जो है वाटर शब्द जो है उस वाटर के साथ में हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, बिकॉज दिस वाटर हैज बीन यूज्ड एज इन ए जनरल सेंस। तो जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन का शब्द किसी जनरल सेंस में काम आता है, किसी सामान्य कथन के रूप में कहा जाता है, तो उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इफ आई से स्टिल वाटर रन्स डीप, के शांत जल जो है वो तले में जो है उसमें प्रवाह तेज होता है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ जनरल सेंस में बात की। और अगर मैं यूं कहूं कि पास मी दी वाटर, कि मुझको जो है पानी दो, तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग, मैं एक खास चीज की बात कर रहा हूँ, जो गिलास में है या जो जग में है वो पानी मुझे दो। तो इस प्रकार जो है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ए specific sense, then article will be used, and if we use them in a general sense, then no article will be used with them. So blood is thicker than water. Now with the blood, blood is also a material noun, no article has been used, and with water also no water no article has been used. So in this way, now next is the honesty is best policy. So honesty is an example of एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो विशेषणों से और जो क्रियाओं से संज्ञा बनती है वो होती है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऑनेस्टी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउ। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, ब्रेविटी, हाइट, विथ, these all words are used in abstract noun. So honesty is a word in a abstract noun, but we have used here an article, the. So this the will not be used here because this honesty has come in a general sense. This sentence is a general saying. This is a dictum, proverb, maxim. You may say anything. Dictum, proverb, maxim, aphoristic saying. ये एक सूत्रात्मक कथन के रूप में बात लिखी गई है कि ईमानदारी की नीति सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर honesty is, और इसमें एक और गलती है कि बेस्ट के साथ में भी द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि हमने जो है ये गलती हो गई, क्योंकि बेस्ट के साथ हमेशा विद सुपरलेटिव डिग्री वी विल ऑलवेज यूज आर्टिकल द विल ऑलवेज बी यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर इज द बेस्ट प्ले राइट इन द वर्ल्ड, एंड ही इज द मोस्ट मेलोडियस song. Lata Mangeshkar is the most melodious singer in the world. So in that way, the will be used with superlative degree. The best policy. So अब कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टी जो है यहाँ जनरल सेंस में आई है, एक सामान्य कथन के रूप में आया है। ईमानदारी के बारे में बात हो रही है कि ईमानदारी की नीति एक अच्छी नीति होती है, तो हमने इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की ईमानदारी की बात करें तो वहां पर हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ माई सर्वेंट, कि मुझे अपने नौकर की ऑनेस्टी, ईमानदारी पसंद है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल क्यों लगाया है? क्योंकि ये ऑनेस्टी वर्ड जो है यहाँ पर खास रूप से इस नौकर की ईमानदारी की बात यहाँ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर होगा। और क्योंकि यहाँ जनरल सेंस में बात हो रही है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर इसके बाद में शी इज सो पुअर टू पे द फी, तो यहाँ पर सो पुअर टू पे द फी, वो इतनी गरीब है अपना जो है फीस नहीं चुका सकती, तो सो का प्रयोग यहाँ नहीं आएगा, सो की जगह प्रयोग आएगा टू। टू विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन, so that to. So this sentence will be written in this way: she is too poor to pay the fee. वो इतनी गरीब है कि अपनी फीस नहीं चुका, अपनी फीस चुकाने के हिसाब से वो बहुत ही गरीब है। And if we want to convert this sentence into using so that, then we will have to write in this way: she is so poor that she cannot pay her fee. So का प्रयोग करने पर दैट के बाद में हमको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा कि क्या काम नहीं हो सकता है या क्या काम हो सकता है, पूरा वाक्य उसको लिखना। सो शी इज सो पुअर दैट शी कैनॉट पे हर फी, इन दैट वे। नाउ नेक्स्ट इज इफ आई वाज अ बर्ड आई माइट फ्लाई,
कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग जो है, ये प्रयोग यहाँ पर सही नहीं है, बिकॉज दिस सेंटेंस हैज कम एज अ कंडीशनल सेंटेंस। So there are three conditional sentence in English grammar: open condition, imaginary condition, and unfulfilled condition. So this is an example of imaginary condition. एक काल्पनिक बात यहाँ हो रही है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। So if we are using these kind of sentence in an imaginary sense, so we will have to use were. We will always have to use were. If I were a bird, I might fly in the sky. Now next is I know now. I know how does he drive a car. क्या मुझे मालूम है कि वो अपनी कार कैसे चलाता है। तो यहाँ पर does का प्रयोग यहाँ पर नहीं आएगा। तो मुझे मालूम है कि वो अपनी कार कैसे चलाता है। So this sentence is not written in an interrogative form. This sentence is written in a simple form and relative pronoun has been used here. How is a relative pronoun? How यहाँ पर क्या है? Relative pronoun है कि मुझे मालूम है कि वो गाड़ी कैसे चलाता है। वो गाड़ी कैसे चलाता है, ये हो गया प्रश्न, और मुझे मालूम है कि वो गाड़ी कैसे चलाता है। तो ये कैसे शब्द जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। कैसे, कब के when did you open the box, कि तुमने बॉक्स कब खोला, एंड आई नो व्हेन यू ओपनड द बॉक्स। तो दोनों में फर्क हो गया। व्हेन जब शुरू में लग रहा है, व्हेन द वर्ड, व्हेन एन इंट्रोगेटिव वर्ड इज यूज्ड इनिशियली एट द बिगिनिंग, देन इट विल बी यूज्ड रिटन एज अ क्वेश्चन, बट द what, when, where are used in the middle of two sentences, then this is called a relative pronoun. So and after using it, how के बाद में हम इसको प्रश्न के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको जो है वर्तमान काल के रूप में ही लिखेंगे। So I know how, फिर इसको पॉजिटिव सेंस के रूप में लिखेंगे, how he drives a car। मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में ही इसको हम वापस लिखेंगे, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के रूप में यहाँ पर डू डज का प्रयोग यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर आर हिज ओनली फूड। ब्रेड और बटर उसके जो है फेवरेट फूड है, सिर्फ एकमात्र फूड है। तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं आएगा क्योंकि ब्रेड एंड बटर की जोड़ी होती है। हॉर्स एंड कैरीज, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, दीज आर यूज्ड यूनाइटेडली। और इनको जब हम प्रयोग करते हैं तो इनको एक रूप के रूप में देखते हैं, एक रूपता के रूप में इनको हम देखते हैं, ब्रेड एंड बटर, बिकॉज ब्रेड इज इनकम्प्लीट विदाउट बटर एंड बटर इज ऑल्सो इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड। वी विल हैव टू use butter on the bread, so they are discussed unitedly। जब हम इनको साथ में संबंध जोड़कर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इज का प्रयोग आएगा, आर का प्रयोग नहीं आएगा। इज हिज ओनली फूड। नाउ नेक्स्ट इज आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग। मुझे कुछ जलने की जो है गंध आ रही है। तो यहाँ पर ये स्मेलिंग या एम स्मेलिंग का मतलब तो होता है मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ जानबूझकर। अपन तो जानबूझकर नहीं सूंघ रहे हैं, कोई जो है सुगंध कहीं से आ रही है। When we are not doing something intentionally, then we cannot use in a continuous form. So works of perception, works of in that way, works of thinking, works of perception, these will not be used in a continuous form. These words will be used in a words of appearing, words of thinking, and words of emotion will not be used with in a continuous sense. So I smell something burning। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इसमें तो स्मेल आ गया समथिंग बर्निंग, लेकिन if we want to smell something intentionally, then I am smelling will be used here. Suppose I say I plucked a flower, plucking a flower, and I am smelling। If I pluck a flower, then how will I say I am smelling the flower? कि मैं फूल को सूंघ रहा हूँ, जानबूझकर तोड़कर मैंने उसको तोड़ा है, उसकी सुगंध में ले रहा हूँ, तो I am smelling the flower। And we are in garden, and if we get the smell of the fragrance of the flowers, then how will we say I smell the fragrance or odor of the flowers in the garden। मुझे सुगंध आ रही है फूलों की
तो उसमें तो आई स्मेल आएगा और मैं खुद सूंघ रहा हूं तो आई एम स्मेलिंग. नाउ नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. सो इट विल बी रीरिटन इन दिस वे, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन. तो यहाँ जनसंख्या की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन के बाद में सही ढंग से बात नहीं बताई गई है कि किस चीज से की तुलना यहाँ पर हो रही है. तो द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ any other city in India. So it will be rewritten in this way. The population of London is greater than that of any other city in इंडिया. तो हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. उस जनसंख्या की बात कर रहे हैं भारत की, शहर की, ना कि खाली शहर की बात कर रहे हैं. तो पॉपुलेशन के हिसाब से देन दैट ऑफ आ जाएगा, देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया. नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड. कि आमों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, कि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. सो क्वालिटी इज यूज सिंगुलरली इन सिंगुलर फॉर्म, इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म. तो गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, तो वर्ड कैसा आएगा, वर्ड तो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा. क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आमों की क्वालिटी. आमों की बात यहाँ नहीं हो रही है. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैंगोज, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड. नाउ नेक्स्ट इज सिटिंग ऑन द गेट अ स्नेक स्टंग हिम. के दरवाजे पर बैठे हुए एक सांप ने उसको काट लिया. तब इस वाक्य को पढ़ने पर हमको ये कंफ्यूजन होता है. हैविंग seen this sentence, we are at our wits' end. So we think, who was sitting on the gate? कि गेट पर बैठा कौन था? वो आदमी बैठा था, सांप बैठा था. तो इसी प्रकार उसको हमको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, सिटिंग ऑन दी. इस पार्टिसिपल का प्रॉपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा. इसका एग्रीमेंट सही ढंग से नहीं हुआ यहाँ पर. सिटिंग ऑन दी गेट, ही वॉज stung by a snake. के गेट पर बैठे हुए उसको he was stung by a snake, उसको एक सांप ने काट लिया. So dear friends, in this way I tried my level best to explain these sentences which were written incorrectly, and I tried to explain them to you so that you may also take a leaf out of my book and start learning these sentences properly and avoid making mistakes in your life. So I will keep uploading these kind of videos in future also. I request you to share and subscribe my videos so that they may many people may be benefited from these videos. Thank you.